Hello students, I hope all of you are okay. Yes? Okay, very good. Now in this video we will see that some basic constructions. Okay, we'll talk about the basic constructions, we'll do also the constructions, we'll learn the method of construction there. So all these things we'll see there. And how do we score? This is full scoring part. I'll tell you that how to score in this chapter, basic construction, and it is almost in all the classes from the middle to upper secondary classes also these constructions are useful. Am I correct? Okay, so here we'll talk about the basic constructions. So I am just telling you in the Hindi and English both that you can understand well, right? Okay. सो बेसिक कंस्ट्रक्शंस इसमें बच्चों पहले अपन सबसे छोटे उससे कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे. जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट दिया गया है उसको कैसे हम यदि सिंपल एक आपसे पूछते हैं. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं कि इफ सपोज ए लाइन सेगमेंट गिवन यू, एनी लाइन सेगमेंट, से दैट ए बी, राइट, and it is told you that divide in two parts. इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए. How do you divide the in two parts? Okay, got the question? Yes. So you got many of hearing the answer for this one. So simple process is there that I told you. The question is here that how to divide in two parts, not equal parts I am saying. राइट. सो क्या करेंगे इसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दीजिए, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, एंड देन से दैट दिस पॉइंट पी, एंड देयरफॉर वी गॉट द टू पार्ट्स हियर ऑफ द ए बी लाइन सेगमेंट. यस, ओके, वेरी गुड. दीज टू पार्ट्स आर हियर ए पी एंड पी बी. ए पी एंड पी बी, they may be equal, they may not be equal, means AP may be equal to PB, it is depending on you, AP, or this AP may be smaller than PB, or AP can be greater than PB, right? Okay, तो ये तीन कंडीशन आपको मिलेंगे यहाँ पे. we'll get the three cases, but now here the question is now arising that how to get the two equal parts, right? This is smaller or bigger, that is okay. By marking a point without measuring we can tell here that one may be bigger, other can be smaller there. So how to get the two equal parts, right? So for that one process is here. We'll see that what is the process of getting that two equal parts. So I am just rubbing this P from here now, and we'll go for seeing that process of dividing line segment AB in two equal parts. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं. तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट AB है इसके दो एंड पॉइंट हैं, टू एंड पॉइंट्स आर देयर A and B. टेक मोर देन हाफ of this line segment, means we are in the process of constructing that perpendicular bisector. I am writing here perpendicular bisector, right? Perpendicular bisector is combinedly, that is combination of two terms, perpendicular plus bisector. Perpendicular plus bisector, as a whole we are saying perpendicular bisector. I put the plus sign here, right? Means जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करने के लिए वो लाइन परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मीन्स इट शुड मेक द 90 डिग्री एंगल विथ ए बी. और बाइसेक्टर मीन्स बाई मीन्स टू, सेक्टर मीन्स पार्ट्स, और इसके दो इक्वल पार्ट भी होने चाहिए. Got that what I told? Okay, so what we do in the process,
we take more than half of line segment AB, more than half, radius equal to more than half. Okay, by taking compass we take radius equal to more than half. इसका आधे से अधिक लीजिए और दो आर्क का अपोजिट साइड ऑफ AB में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और उसी तरह विदाउट चेंजिंग द रेडियस you draw the intersecting arc and then you join it, right? These arcs, intersecting arcs we are joining, and hence we get the point, say that P here now, and this P will divide AB in two equal parts. ये जो P पॉइंट होगा वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स AP विल बी इक्वल टू PB. नॉट ओनली दैट, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट एंगल मेड हियर, यहाँ P पे जो एंगल बनेगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं, ये एंगल कितने का होगा? दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री. एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग दिस इज द परपेंडिकुलर एज वेल एज द बाइसेक्टर. टू इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है. सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बहुत आसान है समझने में. फिर से एक बार इसको बता दे रहे हैं. इसके आधे से अधिक लीजिए, इसके दोनों तरफ आर्क कट करिए ए से और फिर बी से. एक ही रेडियस लेना है आपको, मोर देन हाफ. बहुत मेजर नहीं करना है, एक आप अंदाज से इसके आधे से अधिक लीजिए और इसके आर्क कट करिए, वहीं बी से इसको रिपीट करिए, ठीक है. और इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, दिस पॉइंट विल बाइसेक्ट ए बी इन टू इक्वल पार्ट्स. क्लियर है? वेरी गुड. अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. इसमें आपको क्या करना है, एक एंगल दिया गया है, ठीक है, और इस एंगल के बराबर एक दूसरा एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है. We have to draw the angle equal to the given angle, right? ऐसा एंगल आपको बनाना है जो कि गिवन एंगल है उसके बराबर हो. ये अपना नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है. तो चलिए इसको देखते हैं. हम यहाँ पे एम थोड़ा लिख देते हैं. टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल. एकदम सिंपल है ये भी. एक कोई एंगल आपको, एनी एंगल, कोई भी एंगल दिया गया है और उसके इक्वल आपको दूसरा एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है. तो चलिए एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक एंगल आप ले रहे हैं, एंगल ABC, ठीक है. और यहाँ पे आपको दूसरा एंगल एक ड्रॉ करना है जो कि एंगल ABC के इक्वल है, ठीक है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए एक प्रोसेस है, आपको बताते हैं. पहले आप एक रे ड्रॉ कर लीजिए, एक सिंपल एक रे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं अपन, से दैट YZ, ठीक है. इसके बाद क्या करते हैं, कोई भी रेडियस, एनी रेडियस यू चूज, सुटेबल रेडियस वी आर सेइंग, और Y पे और B पे सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है. गॉट इट? गुड. कोई भी रेडियस लीजिए और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है. हम इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बता रहे हैं समझने के लिए. और Y पे रख के कंपास को, इसको आपको उसी रेडियस का एक आर्क यहाँ भी ड्रॉ करना है. सेम रेडियस का आर्क यहाँ पे और यहाँ पे इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है. अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसके इक्वल आर्क लेके, मतलब कंपास को आप इसके बराबर, आप यहाँ देखिए मैं मार्कर से इसको शो कर रहा हूँ, ये लेंथ आपको लेना है कंपास से, ये लेंथ आपको रेडियस लेना है. और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं, से दैट पॉइंट D, और D को सेंटर लेके एक आर्क कट करिए यहाँ पे.
जो पहले रेडियस है उसको इंटरसेक्ट करेगा। ओके, गॉट इट। फिर से बता दे रहे हैं, रेडियस इक्वल टू, इफ आई से दैट हियर m and n, okay, radius equal to mn, and from D you cut the intersecting arc and then join it। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है, और ये आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। और यदि आप मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से तो these two angles will be always equal, right? For example, suppose this angle is 60 degree, for example, so this angle will be also of 60 degree, got it? जो ये एंगल होगा इसी के बराबर आप दूसरा एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। मीन्स व्हाट वी वांट टू से हियर, दैट एंगल, नेम दिस पॉइंट हियर एज x, एंगल XYZ is equal to angle ABC, angle ABC, okay, it will be always equal, right? Both the angles will be equal. This is the given angle and this is the constructed angle. If I write here that this is the given angle, I am writing here given angle, means this we are constructing in the beginning, and then with the help of the compass we draw here, this is the constructed angle, right? And both are equal in measure, got it? Okay, चलिए बच्चों एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, जो पहला कंस्ट्रक्शन किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या जो ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है आपका एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टेप्स आपको याद रखने हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं, राइट? कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? मतलब यदि आपको फुल स्कोर करना है कंस्ट्रक्शन में तो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है आपका गिवन आप लिख लीजिए यहाँ पे, टू ड्रॉ द एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, राइट? ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा इसको पूरा स्टेप नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। फिर दूसरा स्टेप होता है आपका फिगर। ये आपका फिगर है जो कि आपको यूजुअली राइट साइड ऑन द पेज ये टू कंस्ट्रक्ट, एंड लेफ्ट साइड you leave some space because your that width of the copy is more, therefore we can draw in, manage in the half of the page construction, and the rest half we can write here given. Then steps of construction, right? This is our third part, given, फिगर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखना है, आप ऐसा मैनेज करिए कि कुछ 4-5 पॉइंट्स में आपका ये कंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स है ये मैनेज हो जाए, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों कि जब हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हैं तो यहाँ पे आप, सिंस वी आर डूइंग द वर्क, सो यू स्टार्ट विथ वी, okay, the word V, and we draw, you use this way to write here, we draw angle, suppose ray we are constructing, right? Ray YZ, the given angle, means we have to include ourselves and the examiner both when we write in this way. So we draw such and such things, that this should be written from our side, and don't describe so much, इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है? तो ये 4-5 पॉइंट्स में इसको मैनेज करिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट होता है आपका जस्टिफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आप ये कर सकते हैं कि वी मेजर विद दिस प्रोटेक्टर एंड वी फाइंड दैट angle XYZ equal to angle ABC equal to 60 degree,
or 37 degree or 45 degree, whatever measure is there, we can measure with the protector and we can write so. Clear to you? Okay, very good. Now we move to next construction here, that is that angles, we'll draw the angles here now, that some angles we can draw by using the compass, right? And some angles which are not possible we'll draw with the help of protector. And in lower classes this is all taught, that how to use the protector to draw the angle. Okay, but here now we'll see that how to use the compass for constructing some angles. Some angles means, here I am telling you, for example, the angle of I am writing here first, to draw an angle of 60 degree, 120 degree, 30 degree, 15 degree and so on here, right? चलिए इसको देखते हैं कि जो ये एक ग्रुप है 16 डिग्री, 120, 30, 15 डिग्री, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए इसके पहले एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे कि हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, राइट? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो चलिए इसको देखते हैं. एंगल बाइसेक्टर, फर्स्ट विल सी हियर टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तब इसके ऊपर अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, कोई भी एक एंगल लेते हैं. ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग द एंगल ऑफ any angle. Suppose let us not take the measure of that, then we'll talk about this later on. कोई भी एंगल लीजिए, कोई भी एंगल आप ड्रॉ करिए. ओके, by using the scale and pencil should be very very sharp, right? आपका ये जो वर्क है इतना परफेक्ट होना चाहिए कि that work should be better than the work of the book. Got it? ओके, तो चलिए एक कोई एंगल लिए यहाँ पे, एंगल सपोज दैट पी क्यू आर, वन एंगल वी हैव टेकन एंड वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करिए, कोई भी रेडियस का एक आर्क लीजिए, एनी रेडियस, फिक्स द रेडियस, सुटेबल रेडियस एंड ड्रॉ द आर्क. एंड ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं यहाँ पे, से दैट आर एंड एस. ओके, ये जो भी दो पॉइंट मिले हैं, कोई भी सुटेबल रेडियस लेके आप ड्रॉ किए यहाँ पे. अब क्या करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ आर एस, आधे से अधिक लेना है, किसका, आर एस का. और आधे से अधिक आप समझते हैं, मोर देन हाफ, एंड ड्रॉ द आर्क फ्रॉम एस एंड फ्रॉम आर. intersecting arc, draw the intersecting arc from R and S by taking more than half of RS, right? And then you join it. इसको ज्वाइन कर दीजिए स्केल से. बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है और इसको एक रे यहाँ पे अपन बता देते हैं, से दैट इट इज QT. So what will be here QT ray? This QT will bisect the angle PQR in two equal parts. Okay, this ray QT, I am writing here, ray QT is angle bisector of angle PQR, right? Angle bisector of angle PQR means here what we are saying, that angle PQT is equal to angle TQR, right?
angle PQT is equal to angle TQR. Why? Because QT bisect angle PQR. QT एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये रे जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। एक रेडियस लीजिए और आर्क ड्रॉ करिए। सपोज दिस आर्क इंटरसेक्टिंग दिस टू रेस एट पॉइंट R एंड S, ठीक है, और इसका मोर देन हाफ लेके ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करिए। कहाँ से? R और S से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल होंगे ये आपस में ये इक्वल होंगे। इसको हम थोड़ा सिंबॉलिकली ऐसा दिखा देते हैं, बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल, ओके, एंड हैंस वी कैन से दैट QT इज आवर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ दिस कॉन्सेप्ट विल अप्लाई इन that construction of the angle, some particular angles, okay. Now let us come to that one. Now here just I am rubbing this part because it is over now. Now angle of 60 degree, right? 120 degree, 30 degree, 15 degree, that is we'll see in one figure only, and very simple construction it is. So what we do for that here, first we draw one ray, एक कोई भी रे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, से दैट इट इज OM। एक रे ड्रॉ कर लिए O से, ठीक है, और एक कोई भी सुटेबल रेडियस लीजिए, एनी सुटेबल रेडियस, एंड ड्रॉ एन आर्क। फिर से ध्यान दीजिए, कोई भी रेडियस लेके, बहुत बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, ठीक है, वन सुटेबल रेडियस वी हैव टू टेक, एंड फ्रॉम O वी ड्रॉ द आर्क, राइट, फ्रॉम O, रिमेंबर दैट, फ्रॉम O यहाँ कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है। अब बहुत बड़ा आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उतना, इसलिए इसको थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसी रेडियस को बिना चेंज किए, जो आप एक बार ले चुके हैं, यहाँ D पॉइंट पे रख के, सपोज दैट दिस पॉइंट इज D, यू कट द इंटरसेक्टिंग आर्क, ओके। आर्क आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि बहुत ज़्यादा है तो आप उसको रब कर लीजिए, ठीक है, योर फिगर शुड लुक ब्यूटिफुल, ओके। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट हियर, यू जस्ट ज्वाइन फ्रॉम O। Here this is the angle of 60 degree। यदि आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? दिस विल बी 60 degree। It's magic there, okay? Without using protector we are getting the angle of 60 degree, yes or no? Okay, all of you agree, very good। This is the magic of maths, we can say। And now if you measure with the protector here, you will find that this angle EOM, angle, I am writing this side here, angle EOM is equal to 60 degree, right? अब चलिए 120 की तरफ चलते हैं। 120 के लिए हम थोड़ा यहाँ पे रब कर दिए थे। सपोज दैट वी एक्सटेंड दिस मोर पार्ट नाउ एंड दिस विद द सेम रेडियस। अभी इसको रेडियस को जो पहले लिए हैं उसको चेंज मत करिए, और इसको एक बार और कट कर दीजिए। कहाँ पे रख के? E पॉइंट पे रख के, एंड सपोज दिस पॉइंट इज हियर R। ज्वाइन कर दीजिए, कहाँ से? O से, ठीक है, O से इसको ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पे आपको मिल गया कौन सा एंगल? एंगल 120 डिग्री। इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओके। ये जो एंगल है आपका ये हो जाएगा 120 डिग्री, ओके। दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। विच एंगल? एंगल ROM,
angle ROM will be equal to 120 degree. Okay, good. Without changing radius. This process we have completed. Now 30 degree and 15 degree. ये कैसे मिलेंगे? Okay, very good. All of you are clever. You know, we'll bisect the angle of half of the angle 60, then 30 degree, and half of 30 degree is 15 degree. Half of 60 degree, half of 60 degree is equal to 30 degree, and half of 30 degree is equal to 15 degree, right? That means if you bisect this angle 60 degree, you will get 30 degree. And you know the process now. Just before we have discussed, what we have to do, take more than half of DE, इसका आधे से अधिक लीजिए और आर्क ड्रॉ करिए D से, and from E you repeat the process, join it. I'm just marking here with the dotted line that no confusion will be there. And here this angle, let me name this point here. Suppose that S point is here. So what we get now, angle SOM, angle SOM or angle EOS, both are equal. Angle EOS is equal to 30 degree, right? फिर से यहाँ देखिए, SOM और angle EOS both will be equal, and the each will be equal to 30 degree, means half of 60. Got it? तो अभी इसको थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा आपको बता दे रहे हैं कि ये पहले आप 60 ड्रॉ किए यहाँ पे, और जब इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री ऊपर, ये दोनों एंगल आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं. और सेम प्रोसेस ये टू अडॉप्ट फॉर 15 डिग्री ऑल्सो. सो 15 डिग्री के लिए आप किसको बाइसेक्ट करेंगे? ओके, वेरी गुड, ऑल हैव आंसर. वेरी गुड, ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स. हियर विल बाइसेक्ट द एंगल SOM और एंगल EOS. So he will not go for EOS because it will be let us show with the basic ray here what we have drawn now down. ठीक है, इस रे के साथ हम इसको समझेंगे, OM रे के साथ. तो दिस एंगल ये टू बाइसेक्ट. तो क्या करेंगे इसके लिए, आप इसका मोर देन हाफ लीजिए, मोर देन हाफ, एंड ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम विच पॉइंट, D, and from say that it is point F here. I am marking just to understand F. ये D और F से आपको दो इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करना है. ठीक है, एकदम आप सब समझ गए. वेरी गुड. और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए. कहाँ से? O से. ये आप ज्वाइन कर दिए यहाँ पे. ठीक है, और इसको आप नाम दे दीजिए T सपोज. तो ये जो रे होगा OT, ये बाइसेक्ट करेगा एंगल SOM को टू इक्वल पार्ट्स में. मीन्स एंगल SOT, पे अटेंशन हियर, SOT, एंगल SOT ये किसके इक्वल होगा? अरे बहुत लोगों को आंसर मालूम है. वेरी गुड. एंगल TOM, एंगल TOM, एंड दिस इज इक्वल टू 15 degree. Very good, children. All are very intelligent, talented, and you understood. So now we have learned that how to draw the angle of 60, 120, 30, and 15 degree, right? And in this way we can go for some more constructions. Okay, so we'll talk in the next video with that some more angles like 45 degree, 90, 22.5 degree, right? And some other constructions like 135 degree angle. So we'll talk in the next video, right? So keep watching the video and don't forget to subscribe. Okay, so we'll meet, this is one way to meet
one another, right? And we'll understand more and more which is good for our knowledge. Very good. Okay, see you. Bye.